Good morning, students. Today we will do the activity part of this chapter, Water, a Wonderful Liquid. I have given you the introduction of this chapter earlier in the video also. Now I will repeat this again. I have already told you that water is very essential part of the life, as 72% of the earth's surface is covered with water. Water is essential not only for everyday activities but also for the existence of life also. I have told you earlier. Now, sources of water. I have told you that water is a liquid that exists in three states of matter. Three states of matter, that is solid, liquid and gas. In solid form, that you can see in ice cubes or you can see in glaciers. In liquid form, you can see it in water or any liquid. Then in gas form, it is in water vapors. Now children, other sources, I will tell you the examples also. Examples are like rainwater. When there is a rain, you can see water everywhere. When you dig a hole into the ground, after some distance digging into the ground, you will see water coming out from the ground also, that is groundwater. And some water we are using at home also, that is coming from the nearby pond or river. Okay students, so some water is from coming from rivers. And from where these rivers are coming? These rivers are coming from the mountains, glaciers. So glaciers also, when they melt, they convert into water, and that water is carried away by the rivers and come to us, and that we use for drinking and many other purposes. So these are all other sources of water. Now activity 1, put some ice cubes in a tumbler. I hope you have all done this activity at home also. If not, please do this activity after this video or after the class. You can do this activity and tell me what you have observed in that activity. Put some ice cubes in a tumbler. They will slowly melt and change into water. Heat some water in the presence of an adult. On boiling, water changes into water vapor or steam. Now you can see that you have to take some ice cubes from the refrigerator, then put that ice cubes in one tumbler or in a pan, then wait for some time that ice cubes will melt down and will convert into liquid. Liquid is here is water. So after that is converted into water, then take that pan and keep it on a gas stove and start heating it. You will see after some time steam will be coming out, उसमें से भाप निकलना शुरू हो जाएगी, और धीरे धीरे क्या देखोगे आप लोग, थोड़ी देर बाद वो भाप निकलते निकलते वो पूरा पानी ख़त्म हो जाएगा, और इसका मतलब ये हुआ कि वो पूरा पानी कन्वर्ट हो गया वाटर वेपर्स में, और वाटर वेपर बन के वो उड़ गया हवा में. ठीक है. सो दिस इज़ द एक्टिविटी which is shown in your book also. In this it is given, ice, water and water vapor are the three forms of water. Water changes its forms on heating and on cooling. The process by which water changes to water vapor on heating is called evaporation. The process by which water vapor changes into liquid water on cooling is called condensation. Understood? Here the process by which water changes to water vapor, जब आप वाटर को हीट करते हो ना गैस स्टोव पे, तो वो वाटर के फॉर्म में तो होता है पैन में, लेकिन जब हीट होने के बाद क्या हो जाता है, वो वाटर वेपर यानी भाप बन के उड़ जाता है.
तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। और दूसरा क्या है प्रोसेस है? द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर चेंजेस इनटू लिक्विड वाटर ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। मतलब जब वो इवेपोरेट हो रहा होता है, यानी जब भाप बन रही होती है, स्टीम बन रही होती है पैन से, जब वाटर बॉईल हो रहा होता है तो ऊपर से भाप निकलती रहती है ना, उस भाप को अगर आप ऊपर से एक प्लेट लगा दोगे, उस भाप के ऊपर एक प्लेट लगा दोगे, तो वो प्लेट पर क्या होगा? आपको छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स नज़र आने लगेंगे। तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स कैसे नज़र आए? वो वाटर ड्रॉपलेट्स उसी वाटर वेपर से ही बने हैं। वो वाटर वेपर्स नीचे से पानी से ऊपर उठकर आए और ऊपर जैसे ही प्लेट के सरफेस पे गए, वहाँ पे उसको ठंडा टेम्परेचर मिला, वो वहाँ पे ठंडे हो गए और ठंडे होने के बाद वो वाटर वेपर से वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो गए। वाटर ड्रॉपलेट्स मतलब वाटर में चेंज हो गए फिर से वो। तो यानी ठंडा करने पे वाटर वेपर्स वाटर वाटर में चेंज हो गए। तो दैट इज प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं उसको? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब वाटर वेपर्स ऑन कूलिंग बिकम्स वाटर, दैट इज कंडेंसेशन। और वाटर ऑन हीटिंग बिकम्स वाटर वेपर, दैट इज इवेपोरेशन। तो इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? नाउ देयर इज एक्टिविटी 2। Take a chilled water bottle from the refrigerator, leave it on the table for some time. A pool of water is seen on the table. Where did this water come from? Is the bottle leaking? Discuss. No, the bottle is not leaking. एक्चुअली क्या होता है बच्चों, जब ये बॉटल आप फ्रिज से निकालते हो तो वो एकदम चिल्ड, ठंडी होती है एकदम, और उसकी सरफेस, बॉटल की सरफेस भी बहुत ठंडी होती है। बट वो जिस जगह रखी हुई होती है उसके आसपास का जो एयर होती है वो तो गर्म होती है और उसमें वाटर वेपर होता है। आपको पता है एयर में वाटर वेपर्स भी होते हैं मौजूद। तो जब वो वाटर वेपर्स जब उस बॉटल की सरफेस पे आके जब टच करते हैं, टकराते हैं, तो वो ठंडे हो जाते हैं। और आपको पहले ही मैंने भी बताया पहले एक्टिविटी में कि जब वाटर वेपर ठंडे होते हैं, हो जाते हैं, तो वो वाटर में चेंज हो जाते हैं। तो जैसे ही वाटर वेपर्स हवा में जो प्रेजेंट होते हैं वो जाके उस बॉटल से टच होते हैं तो वो वाटर में चेंज हो जाते हैं। और वाटर जब जैसे ही वाटर चेंज होते हैं तो वो छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स उस बॉटल के ऊपर जम आने लगते हैं, दिखने लगते हैं। और जब वो खूब सारे वाटर ड्रॉपलेट्स उस बॉटल के ऊपर आ जाते हैं, वो धीरे धीरे नीचे बहकर टेबल के ऊपर सारा पानी पानी आपको दिखने लगता है। दैट मीन्स दैट इज वाटर यू फाइंड अराउंड द बॉटल। और वो वाटर वो नहीं होता है जो आपकी बॉटल से नहीं निकल के आया है, ये वो वाटर है जो आपके एयर में मौजूद था, आपकी एयर में प्रेजेंट था वो वाटर। ये वो वाटर है वाटर वेपर्स के फॉर्म में जो प्रेजेंट था आपकी एयर में, वो टेबल पे आकर ठंडा होकर पानी बन गया है। ठीक है बच्चों? अच्छा, एक एग्जांपल मैं आपको और दूंगा। जैसे कि आपके घर में एसी लगा होगा। हम्म, तो एसी जब लगा रहता है तो जब वो चलता है तो आपने देखा होगा एसी जब चलता है तो उसके बाहर उस पानी निकलता रहता है, पानी गिरता रहता है। तो वो क्यों होता है ऐसा? वो इसलिए ऐसा होता है क्योंकि जब रूम के अंदर जो है वो एयर प्रेजेंट होती है और एयर में होते हैं वाटर वेपर्स। तो जब एसी जब रूम को ठंडा कर देता है तो वो वाटर वेपर्स को खींच के बाहर निकाल के उसे ठंडा करके वेपर्स में फॉर्म में चेंज करके उसको वाटर वेपर्स जो होते हैं उसको वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में चेंज करके ठंडा करके उसे बाहर निकाल देते हैं। अब तभी आपको वो दिखता है कि वो वाटर वेपर्स वाटर के फॉर्म में आपको, पानी के फॉर्म में आपको बाहर एसी के बाहर टपकते हुए या निकलते हुए आपको नज़र आता है। सो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन। ओके स्टूडेंट्स, so we go to on activity 3. Breathe out a window pane. What do you see? Little drops of water are formed on the glass. From where does this water appear? Discuss. Now, अगर आपने एक बार और कभी देखा होगा, यू हैव ऑब्जर्व्ड दिस ऑल्सो, व्हेन यू ब्रीथ आउट ऑन अ विंडो पेन, अगर आप सांस छोड़ते हो बाहर की तरफ और एक विंडो पेन यानी ग्लास, ग्लास कोई भी ग्लास ले लो आप इवन मिरर ले लो, मिरर,
जिसमें आप रोज़ अपनी शक्ल देखते हो। मिरर पे आप उस पे अपनी सांस छोड़ो बाहर की ओर, हाँ, लाइक दिस। उसके बाद आपको क्या दिखाई देगा कि उस मिरर पे आपको एक धुंधला सा कुछ एक सरफेस बन जाएगा। और वो धुंधला क्यों हो जाता है? वो इसलिए हो जाता है क्योंकि उसपे छोटे 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 वाटर ड्रॉपलेट्स मौजूद होते हैं। वो इसलिए क्योंकि आपके मुंह के अंदर भी वाटर वेपर्स हैं। वो आपके मुंह से बाहर जब निकलता है, हवा निकलती है, तो उसमें गर्म हवा होती है। You can do this by putting your hand in front of your mouth and breathe out. You will feel a warmthness in your hand. गरम सा लगेगा आपको हाथ में। तो वो जो हवा आपके मुंह से निकलती है वो हल्की सी गर्म होती है और उसमें वाटर पेपर्स होते हैं। और जब वो शीशे पे जाके टच करती है वो हवा, तो वो ठंडे हो जाते हैं वाटर वेपर्स और वो वाटर ड्रॉपलेट्स में बदल जाते हैं। तो वो आपको दिखने लगते हैं। तो वो जब आप उसको टच करोगे ना, छुओगे ना, तो उसमें लाइन सी बन, डिज़ाइन सी बन जाती नहीं है? तो वही चीज़ आप करके देखना, ये एक्टिविटी। ओके, सो डू ऑल these three activities at home and tell me your experiences, what you have found on the WhatsApp group. Okay, students, now we will do the water cycle in the next session. This chapter is very interesting also, and very lengthy also. I will not go very fast in this chapter. I will take some time. We'll do each and every thing. I will explain you each and everything in this chapter. Please do ask me any question you if you don't understand anything. Okay, students, thank you.